اس کی 6 سے اس کی 16 آیت تک 6 سے 16 آیت تک ایک مسیح یسوع کے اچھے خادم کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں. میں اس کو 10 آیت سے پڑھوں گی کیونکہ ہم محنت اور جان فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے. وہ پوری دنیا کے لیے خدا ہے لیکن وہ یہوہ آپ کا باپ ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے شاید یسوع کو پوری دنیا میں کچھ لوگ نبی مانتے ہوں یا ایک بڑا شخص مانتے ہو جو زمین پر آیا بڑے کام کیے, لیکن ایمانداروں کے لیے وہ ان کا منجی ہے, ان کا مسیحا ہے. اور یہوہ دنیا کے لیے خدا ہے لیکن آپ کے لیے وہ آپ کا باپ ہے. ہاللیلویا. جو سب ہمیں کہتا ہے خدا پر امید لگی ہوئی ہے, جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے. ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. یہ پاسبانوں کے لیے بھی اتنا ہی کلام ہے اور ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کر کے بپتسمہ لے لیا ہے, اب وہ نیا مخلوق ہے. ہاللیلویا. تو بائبل کہتی ہے کہ اب تو کیا کر, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. ہاللیلویا. یہ وہ باتیں ہیں جن پر صرف پریچ کیا جاتا ہے, اس پر ورک نہیں کیا جاتا. تو کلام کرنے کے لیے, شاید کلام کرنے کے لیے سیمنری کام آ جائے یا بڑی بڑی جو کتابیں سرمن بنانے کے لیے وہ کام آ جائے, آپ کو ریفرنس مل جائیں, آپ کی کچھ خاص طرح کی سٹڈی کام آ جائے یا کسی سے آپ نے اچھا سرمن سنا وہ آپ کے کام آ جائے. لیکن آگے ہے چال چلن, کردار. ہاللیلویا. اگر آپ کا کردار مسیح یسوع کے موافق نہیں تو آپ کا مسیحی گھر میں پیدا ہونا آپ کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جائے گا. ہاللیلویا. تو بپتسمہ لے کر روح القدس سے بھرنا, نئے سرے سے پیدا ہونا اور پھر اسی کے مطابق چال چلن چلنا, کردار کو بنانا آپ کو بادشاہی کی طرف لے کر جاتا ہے. جس طرح سے ہم ایک ٹرین پکڑ کر لاہور آئے ہیں, اگر ہم دوسری ٹرین میں بیٹھتے جو ڈائریکٹ لاہور نہ آتی تو کیا ہم کہتے بیٹھے تو ٹرین میں ہی ہیں, تو کیا لاہور آ جاتے؟ نہیں. بتاؤ مجھے, اگر لاہور آنا تھا یا آپ کو یہاں سے کراچی جانا ہے تو آپ کو رائٹ ٹریک کی ٹرینیں بہت سی ہیں, لیکن آپ کو وہ ٹرین پکڑنی ہے جو آپ کو آپ کی منزل پر پہنچائے جہاں آپ کو جانا ہے. ہاللیلویا. اس دنیا سے سب نے ایک دن اپنا زمینی سفر پورا کر کے جانا ہے, راست باز نے بھی اور ناراست نے بھی, شریر نے بھی, گناہگار نے بھی. لیکن معنی یہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے, آپ جس ٹرین میں جو سفر زندگی میں آپ گزار کر جا رہے ہو اس کا اینڈ کیا ہوگا. آپ جو مسیحی ہیں, جو ورشپ کرتے ہیں, جو گیت گاتے ہیں, اپنے نام کے آگے مسیحی لکھتے ہیں پیارا سا کر کے, کیا آپ مسیح کے پیروکار بھی ہیں؟ ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے ہمارے نام کے آگے مسیحی لکھا ہونا یا مسیحی گھر میں پیدا ہونا ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں بناتا, نہ ہی خدا کے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے. کلام میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے وہی خدا کے بیٹے, اور جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے اس کی تعلیم دے کر خدمت کرتے ہیں وہی اصل میں سیوادار, وہی اصل میں پاسٹر, وہی اصل میں خدمت گزار. کیونکہ بائبل کہتے ہیں تم لفظوں کے نہیں بلکہ روح کے خادم ہو. تو جتنے لفظوں کے خادم ہیں وہ پھر لفظوں کی باتیں, اس کے لیے آپ کے, میں نے پہلے کہا کلام سنانے, کہتے ہیں پہلی بات تو کلام سنانے میں مہان ہو, ہنر مند ہو. تیرے پاس ایک کلام کے لیے ایک توڑا ہونا چاہیے, تو پریچ کرے, لوگوں کی زندگیاں چینج ہونی چاہیے, لوگ فیصلہ لے کہ ہاں مجھے آج سے کچھ کرنا ہے. لیکن نمبر 2, وہ آپ کسی کا سنا ہوا بھی نوٹ کر کے سنا سکتے ہیں اچھی پریکٹس کر کے, لیکن چال چلن کسی کا کہاں سے پکڑ کے لاؤ گے وقتی طور پر, وہ تو آپ کو اپنا ہی کرنا پڑے گا. ہاللیلویا. وہ تو آپ کو اپنی ہی چال چلنی پڑے گی. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہوہ فرماتا ہے وہ مبارک ہے جو درست گفتار اور سیدھی چال چلنے والا ہے, وہ دنیا کی بلندیوں پر جائے گا, اسے روٹی اور پانی کی کمی نہ ہوگی.
यानी कि जिसके लफ्ज ठीक ठाक है, जो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल जानता है, जो दुरुस्त गुफ्तार है, गुफ्तगू में परफेक्ट है, जिसकी गुफ्तगू ऐसे है गोया कलाम, हालेलुया, तो उसका चाल चलन किरदार मसीह के मुआफिक हो, हालेलुया। नंबर 2, वो मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत, दुनिया वाली मोहब्बत नहीं, हालेलुया, दुनिया की वो मोहब्बत नहीं जिसमें ज़नाकारी और पाप और गंदगी है, खुदा की मोहब्बत जिसमें वो अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद प्यार करता हो, दुश्मनों को माफ करता हो, सताने वालों के लिए दुआ करता हो, ये वाली मोहब्बत, हालेलुया। वो अपने पास्टर भाई से नफरत और जेलसी ना करता, उसे रोकता ना, तू उसे चलना है, नहीं तू चर्च नहीं जाना, कि तू बच ना जाए, हालेलुया। वो जेलसी उसमें ना हो, उसमें मोहब्बत हो कि नहीं ये बचनी चाहिए, ये रूह बचनी चाहिए, उसमें ईमान की पुख्तगी हो, वो पाकीज़गी में नमूना बने, एग्जाम्पल बने, नहीं उसकी लाइफ कमाल है। वो नौजवानी में, टीन एज में, जिस उम्र में नौजवान बेटे और बेटियां व्हाट्सएप और गंदी चीजों की तरफ माइल है, गंदी फ्रेंडशिप की तरफ है, नहीं, बपतिस्मा लेकर तौबा करके वो मसीह यसु में मगन है, दिन रात दुआओं में है, उसका कलाम पढ़ने और उसी पर चलने की एक उसको धुन है, यह है पाकीज़गी। वो नहीं कि तुसी चिट्टा सूट पा के ते चर्च च भैन जी सबसे अगे बैठे ते ब्रदर जी बहुत जोर जोर से ताली बजाते लग रहे, पाकीज़गी नहीं। पाकीज़गी आपके किरदार की, आपकी सोचों की, आपकी निगाहों की। यीशु मसीह ने पाकीज़गी का म्यार बहुत ऊंचा कर दिया। पुराने नामे था अगर तू किसी के साथ ज़नाकारी करे तब तुझे सजा मिलेगी, लेकिन यीशु ने कहा अगर तूने गंदी नजर से किसी मर्द को या देख लिया या किसी औरत को देख लिया, तू ज़ना कर चुका या कर चुकी, हालेलुया। तो तेरी निगाहों में, तेरे सुनने में पाकीज़गी हो, हालेलुया। जब तक कहते मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, यानी कि आपको फिक्र रखनी। मैंने तौबा की थी, तब मैंने खुदा के रूह को बड़ा रो रो के पाया था आंसुओं के साथ। बाइबल कहते हैं उसके रूह को रंजीदा ना करो। तब मैंने ये नेमत मांगी थी, खुदा मुझे गैर जुबान की नेमत दे। आज मैं गैर जुबान तो बोलती हूँ, गैर जुबान तो बोलता, पर मेरा किरदार नहीं। दूसरे कहते हैं उनसे गैर जुबान से प्रे कर दी काम में दे। देखो तो याद करना है उस टाइम को जब आपने वो नेमतें, वो रूहानी बरकतें जब आपने ली थी। कहते हैं इन बातों की फिक्र रख, इन ही में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। कि नहीं ये ग्रोथ कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो जाए। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। थोड़े महीने पहले, इसी महीने की पहली तारीख को और फिर पिछले महीने की 9 तारीख और 24 तारीख को जो कराची में 2 बड़ी मीटिंग्स थी और हमारी जो इवेंजलिज्म टीम थी वो पम्फलेट्स लेकर गई पोस्टर लोगों के पास। तो कुछ लोगों ने वो भाई बताने लगे, कहते हैं कि कुछ लोग हमें पूछने लगे कि ये लोग कौन है, क्या ये बाप बेटा रूल कुदस पे ईमान रखते हैं, बपतिस्मा देते हैं। मैंने कहा बेटा ये उनका हक है, बाइबल कहती है तू अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। बहुत बिदते हैं, ये जानना उनका हक है। मैंने कहा आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपका हक है अपनी सेहत का ख्याल रखता है। आप पूछो ऑयल अच्छा इस्तेमाल किया, खाने में गड़बड़ तो नहीं, सब चीजें सेट है, चेक करने अगर आप जाते हो पूछते हो तो आपका हक है, क्योंकि आपकी सेहत का सवाल है। तो ये उनके ईमान का सवाल है, हालेलुया। तो मैंने कहा ये अच्छा है कि उन्होंने पूछा। कहते जब उन्हें गाइड किया गया लोग ब्लेस हुए और लोगों ने ज्वाइन किया और अपने अपने मौजों को रिसीव किया। कहते अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा, दूसरों के लिए ठोकर का बाइस नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ये जो चर्च, ये ब्रांच जो शुरू हो रही है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, जब मैं वुमेन मीटिंग लेती थी और अभी भी जब लेती हूँ, तो एक सिस्टर ने मुझे बहुत शुरू में कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले आके पूछा कि कुछ लोगों ने सवाल किया उन्होंने केड़ी मिशन है। मैंने कहा रूहों को बचाने की, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक मिशन दिया, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटा रूल कुदुस के यानी के किरदार मेरा सिखाओ, लोगों को तालीम दो, लोगों को सिखाओ कि वो यीशु मसीह में बने रहे, उसके किरदार में बने रहे, मेरे आने तक कायम रहे। यही मैंने कहा हमारी मिशन। हम पैदाइश से लेके मुकाशफा तक पूरी बाइबल पर ईमान रखते हैं, बाप बेटा रूहुल कुदुस पर, यहोवा बाप पर, यीशु मसीह पर, रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं।
किसी ने हमारे बारे में गलत अफवाह फैलाई, पास्टर जी को फोन आया, एक सिस्टर कहती तुसी रूहुल कुदुस नहीं मानते, उन्होंने हंस के बोला साड़ी तो मिनिस्ट्री का नाम ही है। हालेलुया। हम कैसे रूहुल कुदुस को नहीं मानते? उसके बिना हमारा वजूद ही क्या है? धरती पर जमीन पर हम जी नहीं सकते उसके बिना। वो ना हो तो शैतान इधर बता दे, लेकिन वो साथ है। बाइबल कहती है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। वो बड़ा जो इधर मौजूद है वही आपको छू रहा है, वही मेरे वसीले आपसे बात कर रहा है। तो मिनिस्ट्री का नाम ही क्या है? द पावर ऑफ, यानी रूहुल कुदुस की पावर, उसकी कुदरत, उसकी ताकत। हालेलुया। जो आज हर एक मसीही को चाहिए, वरना वो शैतान पे गालिब नहीं आ सकता, कमियों पे गालिब नहीं आ सकता। हालेलुया। तो रूहुल कुदुस पे, गैर जुबानों पे हमारा ईमान है। हालेलुया। रूहुल कुदुस के उतरने, हमारे अंदर बने रहने पर हमारा ईमान है। यीशु के जल्द आने पर हमारा ईमान है। वो आएगा और बहुत जल्द अपनी कलीसिया को रूह से भरे, रूह की हिदायत से चलने वालों को जल्द उठाने वाला है, और ये बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। उसके नबियों पर हमारा ईमान है कि उसने नबी भेजे, बातें की। पुराने अहदनामा पर वर्ड टू वर्ड, पूरे अहदनामा पर, पुराने और नए पर हमारा ईमान है। हम ये नहीं कहते पुराने को छोड़ दो, सिर्फ नया पढ़ो। पुराना आप छोड़कर ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको पढ़ना है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा फेथ है। हालेलुया। और हम ये ईमान रखते हैं कि कोई भी इंसान वो अपने रोजे रखकर, अपनी मेहनत करके निजात नहीं पा सकता। यीशु के लहू के वसीला से मुफ्त में निजात मिली है। उसके फजल के सबब से आप रास्तबाज हैं। हाँ, आपको अपनी निजात को बनाए रखने के लिए, पाकरू को अपने अंदर रखने के लिए पाकीज़गी की जिंदगी जीनी पड़ती है, ताकि पाकरू आपके अंदर, क्योंकि वो पाकरू है, नापाक जिंदगी में रह नहीं सकता, इसलिए हम पाकीज़गी पे बड़ा जोर देते हैं। क्योंकि यही हमें हमारे उस्ताद, हमारे वालिदैन यही सिखाते हैं जो रूहानी, कि पाकीज़गी के बिना तुम चल नहीं सकते। रूहानी मसीह के किरदार के बिना तुम जल्दी उठोगे तो सही। जैसे रसूल कहता है, उन्होंने शुरू तो रूह में किया पर जिस्म में खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आपके शक दूर हो जाए कि गलत जगह पे तो नहीं आ गए, आप राइट जगह पे बैठे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आंखों को बंद करके हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। मैं ईमान से इस कलाम को जो किया गया है कबूल करती हूँ, करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन।